connect. COVID has been a part of our lives for about 2 years now. And till now, people have a lot of queries regarding cardiac problems. Today we have with us a very own, one of the most eminent cardiologists, Dr. A.B. Malpani with us, Namaskar. who is here to answer all your queries regarding COVID and heart. Welcome, sir. Thank you so much. So, sir, we see a lot of patients here these days, a lot of cardiac patients. Obviously, cardiac issue एक ऐसा issue है, sir, which has never left us. But with the cardiac issue, now we have another addition, which is the COVID issue. So basically, it has become an amalgamation of these two, and a lot of patients have apprehensions. Whether कि अगर उनको cardiac issue है तो they are more susceptible to COVID. Is it true, sir? See, this question has got two parts. Whether if I am a heart patient, am I more susceptible to heart disease, or if I have a heart problem, I should be more careful if I get infected. Now coming to number one, there is nothing like if you are a heart patient, you have a more likelihood of getting a heart COVID infection. It is equal for all the people. But yes, if the person has a heart problem and if he gets COVID infection, it is likelihood that he gets more serious infection and the chances of morbidity and mortality are more in this patient. But as far as susceptibility to the infection is concerned, if you are a heart patient or you are not a heart patient, doesn't matter. If your immunity is low for any reason, suppose if you have any disease for which you take some medicine, or you have a multiple diseases for which your immune level is low, your body resistance is low, then you are more susceptible to get COVID infection. Okay. And sir, ऐसा भी देखा गया है कि जब किसी को कोई कोविड होता है, ऐसे भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि अगर मुझे कोविड हो गया तो शायद हार्ट की मुझे इश्यूज राइज हो सकते हैं, जैसे अरिथमिया हो सकता है मुझे, या फिर हार्ट अटैक हो सकता है. इस बारे में आपके क्या? अगर देखिए, कोविड इन्फेक्शन इज वी ऑल नो इट्स अ वायरल इन्फेक्शन. It enters the body through nose and mouth, and it attacks the ACE receptor, angiotensin converting enzyme receptor. These receptors are present in our respiratory system, our GI tract, and even arteries, and even in arteries which supply blood to the heart, and even in hearts. So a person, and usually it's a disease of inflammation. It causes vasculitis, means it causes inflammation of the vessels. सो अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है और उसके कोरोनरी आर्टरीज में कुछ स्टेबल प्लाक है, माने ब्लॉकेजेस है लेकिन वो स्टेबल है, उससे उनको हार्ट अटैक नहीं हो रहा है, तो ये इन्फेक्शन के कारण, वो वेसल्स में इन्फ्लेमेशन के कारण स्टेबल प्लाक कैन बिकम अनस्टेबल. जो पेशेंट जिसको पता भी नहीं था कि उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, सडनली उनको चेस्ट पेन, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या एक्यूट हार्ट अटैक हो सकता है. और इवन दूसरा चीज करो कि जैसे मैंने बताया था कि ये कोविड से वैस्कुलाइटिस होता है, एंड बिकॉज ऑफ वैस्कुलाइटिस देयर ऑकर्स इंक्रीज activation of the platelets, which causes coagulation, or the platelets gets aggregated and form a thrombus, and these thrombus can go to different organs and can cause problem. जैसे मैक्सिमम लोगों का हम लोग जो देखते हैं कि लंग इन्वॉल्व होते हैं, उसका कारण, बहुत से लोगों में यही कारण होता है कि वो थ्रोम्बस है, वो जाके लंग्स को इन्वॉल्व करते हैं, जिसके कारण हमारा सैचुरेशन फॉल करता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी डेवलप होती है, वो कारण. तो सेम चीज, वो थ्रोम्बस अगर हार्ट की मसल्स में चला जाए तो हमको हार्ट अटैक भी हो सकता है, एक पार्ट. नंबर दो, द COVID can affect the heart muscles also and can cause various types of arrhythmias also. We have seen patients who are getting this pericardial effusions also because of the COVID. So yes, COVID can cause problem, can aggravate the already existing problem in the heart. Okay. And sir, जैसे like we have seen कि जिनको diabetes और hypertension की problems होती हैं, they also suffer from cardiac ailments. क्या उन्हें भी ज़्यादा, even they are they also more like susceptible to COVID? I would say the same thing. Yes, those people who are having multiple problems, they are
comparatively slightly more susceptible to develop this get infection because they are on so many medication and their body fighting power is less, their immunity is less. But even if you have all this comorbidity, but if you are fit enough, then you are having a chances of getting COVID infection same as any other non susceptible infection. But yes, if the if you are having a multiple comorbidities like diabetes, like high blood pressure, like heart failure, coronary artery disease, or kidney diseases, or cancer, and other immunosuppressive diseases, your chances of getting severe infection is more, and even chances of dying because of the COVID is more. Okay. सर एक और सवाल है कि सो अगर किसी कार्डियक पेशेंट को बाय चांस इफ ही सफर्स फ्रॉम एनी सिम्टम्स, कंफर्मेशन नहीं है कि कोविड है कि नहीं, बट ऑब्वियसली देर आर वेरी सिमिलर सिम्टम्स लाइक फ्लू हो गया एंड एवरीथिंग, व्हाट शुड दे डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस वी हैव सीन कि कोविड इतना फैला हुआ है एंड पीपल हैव दिस एप्रीहेंशन कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो मुझे मे बी इन्फेक्शन हो सकता है, तो इस सिचुएशन में कार्डियक पेशेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इस क्वेश्चन को मैं डिवाइड करता हूँ. नंबर 1, आपको क्या प्रॉब्लम है. अगर आपको बुखार आया है, सर्दी खांसी हो रही है, और आप हार्ट के पेशेंट्स भी है, अब आपको चिंता सताएगी कि मेरे को कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इस समय मैं बोलूँगा कि अगर आपको सिर्फ फीवर है तो आप घर में खुद को आइसोलेट कीजिए, ताकि एटलीस्ट आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स अफेक्टेड नहीं हो. आप पैरासीटामोल खा के बुखार को कंट्रोल रख सकते हैं. और आजकल ऑक्सीमीटर सब जगह मिलता है, तो ऑक्सीमीटर से आपका दिन भर में 3-4 बार ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करते रहिए. अगर वो 95%, 96% से हायर आता है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. और आप अपना कोविड RT-PCR टेस्ट करा लीजिए. अगर वो पॉजिटिव आता भी है तो आपका आइसोलेशन और ज़्यादा कंफर्म हो जाएगा. अगर नेगेटिव आता है तो यू कैन जॉली वेल मिक्स विद द अदर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, बट स्टिल आई वुड से देयर आर फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट्स इन RT-PCR ऑल्सो. देयर आर मल्टीपल रीजन्स बिकॉज ऑफ दैट विच वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस टुडे. बट अगर आपको सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, अगर इवन आपका RT-PCR नेगेटिव भी आया है, स्टिल टू बी सेफर एंड टू प्रोटेक्ट आवर फैमिली मेम्बर्स is better to isolate yourself in another room and not to mix with the people. अगर आपका सैचुरेशन 95-96% से ज़्यादा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, अगर आपका सैचुरेशन फॉल करने लगता है, अगर आपका पल्स रेट हाई होने लगता है, अगर आपका फीवर ज़्यादा तेज हो रहा है और इवन पैरासीटामोल से भी कम नहीं हो रहा है, ये एक सिम्टम्स है, तब आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए. और अगर जो भी है कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल में, अगर आपके फिजिशियन अगर आपको एडवाइस करते हैं तब आपको एडमिट होना चाहिए. कमिंग टू द अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, अगर आपको कुछ डिजीज हुई है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, अभी हम लोग देखते हैं कि जितने हार्ट के पेशेंट्स हैं या जो नए पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट के सिम्टम्स हो रहे हैं, वो भी हॉस्पिटल में जाने से डर रहे हैं और वो अपनी होममेड रेमेडीज कर रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमारा हार्ट का है या नहीं है अभी पता नहीं, पर हम कोविड इन्फेक्शन लेके आ जाएंगे घर पे. तो ये एक बहुत बड़ा एप्रीहेंशन है. और हमने पिछले 1.5 साल से, जब से कोविड उठा है तब से हमने देखा है कि जिनको हार्ट प्रॉब्लम है वो कंपैरेटिवली हॉस्पिटल में लेट आ रहे हैं, जो एज कम्पेयर टू 1.5 ईयर बिफोर. पहले लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम होता था वो जल्दी पहुंच जाते थे. और हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जहां पर हम लोग स्लोगन बोलते हैं कि हार्ट इज मसल. The earlier you reach the hospital, better treatment available and you can save your heart muscles from getting damaged. तो ऐसे लोगों को मैं बोलूँगा कि अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है और आपको लग रहा है तो इमरजेंसी में जाइए. इस मामले में मैं यहाँ पर एक बोल सकता हूँ कि BM बिरला हॉस्पिटल आप लोगों के लिए बहुत सेफ हॉस्पिटल है. हम लोगों का नॉन कोविड हॉस्पिटल है. यहाँ आपको इन्फेक्शन होने का कोई खतरा नहीं है और यहाँ पे पूरे प्रोटोकॉल से सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं ताकि एक दूसरे से कोविड ना फैले. तो आप यहाँ हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, वहाँ पर आपका प्रिलिमिनरी चेकअप किया जाएगा. अगर हार्ट का प्रॉब्लम है
अगर उसमें एडमिशन की ज़रूरत है तो एडमिट किया जाएगा। अगर प्रिलिमिनरी देखा जाए कि हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है या अगर है भी तो माइनर है, तो आपको दवाई देके घर भेज दिया जाएगा, विच इज़ सेफर फॉर यू। तो आई वुड से जैसे कुछ सिम्टम्स है, अगर आपको सिर्फ बुखार, खांसी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, देन यू शुड गो टू कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल इफ़ योर फिजिशियन सजेस्ट। जैसे मैंने 2-4 चीज़ें आपको बोली है कि कब आपको अटेंशन सीक करना चाहिए। पर अगर आपको कार्डियक प्रॉब्लम है तो कोविड हो या नहीं कोविड हो, आपको डिले नहीं करना है, because the more delay you make, the more irreversible damage you cause to your heart, which can stay lifelong with you afterwards. So don't panic, come to our hospital. Ours is a very safe hospital, non-COVID hospital, and we take all the precautions that person doesn't get infected in our hospital. सर अब बात करते हैं वैक्सीन्स को लेके। सो बहुत सारे पेशेंट्स को ये सवाल रहता है कि शायद उन्होंने इस साल में निमोकोकल या फिर फ्लू वैक्सीन्स लिए होंगे, तो इज़ इट लाइक अगर उन्होंने वो शॉट ले लिया है तो क्या उनको कोविड वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ये बहुत मिथ है। थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बहुत से लोग पूछते, माने सोच लेते हैं कि अरे मैं तो फ्लू का वैक्सीन ले लिया, मैं तो एंटीवायरल वैक्सीन ले लिया, अब मेरे को कोरोना से कोई भय नहीं है। ऐसी बात नहीं है। फ्लू वैक्सीन सिर्फ जो अदर कॉमन फ्लू वायरसेस है उसी से प्रोटेक्ट करेगा। कोरोना वायरस से वो फ्लू वायरस आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। देर आर सम रिपोर्ट्स कि थोड़ा बहुत क्रॉस इम्यूनिटी होता है। जैसे पहले हम लोग बोलते थे कि इंडिया में बीसीजी वैक्सीन लिया हुआ है लोगों का, इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रोटेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो पूरा मिथ साबित हुई, क्योंकि सेकेंड वेव ऑफ कोरोना में आप सब जानते हैं कि कितने सारे लोग इन्फेक्टेड हुए, कितनी डेथ हुई। तो ये क्रॉस इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती है। अगर आपने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लिया भी है, वो आपको कोविड को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, आपको कोविड का वैक्सीन लेना होगा। यहाँ पर मैं आपको एक और पूछा नहीं है, फिर भी एक आंसर देना चाहता हूँ, जो कि बहुत कॉमन हम लोग रोज डे टू डे प्रैक्टिस में फेस करते हैं, कि जो लोग एंटी कोआगुलेशन ले रहे हैं उनको वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेना सेफ होता है कि नहीं सेफ होता है। मैं यहाँ आपको बोलूँगा, एंटी कोआगुलेशन में 2 टाइप के एंटी कोआगुलेंट होते हैं। एक तो एंटी प्लेटलेट एजेंट, जिसको एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, टिकाग्रेलर, जो कि हम लोग जिनका एंजियोप्लास्टी करते हैं, जिनको हार्ट अटैक आया उनको दिया जाता है, तो ये बहुत सेफ है। आपको एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल या टिकाग्रेलर, ब्रिलिंटा जो ड्रग्स ले रहे हैं, इसमें आपको कोविड के लिए कोई भय नहीं है। आपको कोई मेडिसिन बंद करने की दरकार नहीं है, आप आराम से कोविड वैक्सीन ले सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इन मेडिसिन का। अब काम करता है कि वो पेशेंट जो एंटी कोएगुलेंट ले रहे हैं, जैसे वारफेरिन होता है या एसिट्रॉम होता है, या आजकल जो नॉवल एंटी कोएगुलेंट नॉवल ओरल एंटी कोएगुलेंट आ गए हैं, वो जो एपिक्साबैन, रिवरक्साबैन, ये जो ड्रग्स ले रहे हैं, इनको लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसमें से मैं ये बोलूँगा कि अगर आप एसिट्रॉम या वारफेरिन ले रहे हैं तो आपको आईएनआर चेक करना चाहिए। अगर आपका आईएनआर 3 से कम है तो आप सेफली एंड वैक्सीन ले सकते हैं। अगर 3 से हाई है तो आपको कुछ दिन डोज कम करना पड़ेगा, और जब आईएनआर 3 से कम हो जाए तब आपको वैक्सीन लेना चाहिए। और यहाँ पे 1-2 चीज और प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो आप वैक्सीनेटर को बोलिए कि थोड़ा थिन नीडल से मेरे को वैक्सीन दे, 25 और 26 गॉज नीडल से। दूसरा, वैक्सीन लेने के बाद में आप वहाँ पर ऐसे रब मत कीजिए, मसाज मत कीजिए, और जहाँ पर आपको वैक्सीन दिया गया है उस स्पॉट को 2 उंगली से घड़ी देख के 3-4 मिनट तक हल्का प्रेशर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप सेफली वैक्सीन ले सकते हैं। ओके, दैट वाज अ वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन सर। एक और सवाल है सर, जैसे किसी को कोई कार्डियक पेशेंट है जिसकी रेगुलर दवाइयाँ चल रही है, ही मस्ट हैव अंडरगॉन सर्टेन प्रोसीजर एंड समथिंग, एंड उसको कोविड हो जाता है, फिर कोविड की भी अलग से दवाइयाँ चलती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं यही पूछना चाहते हैं कि जो मेडिसिन चल रही हैं कार्डियक मेडिसिन, उसको भी कंटिन्यू रखा जा सकता है अलॉन्ग विद द कोविड मेडिसिन, या फिर कुछ डोसेज में चेंजेस होते हैं? नहीं, अगर जो मेडिसिन आप रेगुलर लेते हैं
उसको आपको बंद या कम नहीं करना है अनलेस स्पेसिफिकली आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर आपका पल्स हाई हो गया, पल्स लो हो गया, बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, ऐसे केस में थोड़े माइनर एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, लेकिन एज ए ब्रॉड गाइडलाइन आपको आपकी मेडिसिन रेगुलर लेनी है अलॉन्ग विथ अदर मेडिसिन for COVID infection which your doctor has treated, but change the medicine only under medical supervision, not on your own. This might cause problem to you. Don't change your medicine. Okay. So sir, some important tips for our cardiac patients कि what all precautions they should take, what all food habits they should intake so that they can prevent COVID. ऐसा कुछ आप देखिए, कोविड हो या कोविड नहीं हो, एकदम हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। कोविड में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत सारे मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन, जिंक, आयरन, ये वो बहुत लेते हैं, विटामिन डी बहुत लेते हैं, लेकिन ओवरऑल ज़रूरत है अच्छी इम्यूनिटी की इम्यूनिटी होनी चाहिए। इसके लिए आपको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा क्वांटिटी में खाना चाहिए ताकि आपको ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन नहीं लेना पड़े। और अगर आप ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन अगर ज़्यादा डोज में ले और प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन में ले तो ये थोड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं हाइपरविटामिनोसिस का। तो इसलिए हेल्दी फूड खाएं, हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट, लो फैट, हाई फाइबर डाइट खाइए, ज़्यादा फ्रूट्स और विटामिन लीजिए। ये तो जहाँ तक डाइट का सवाल है। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। अभी जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, 2 मीटर डिस्टेंस का डिस्टेंस रखिए आपस में। सब समय जहाँ भी बाहर जाते हैं मास्क पहनिए। और सिर्फ मैं यहाँ यही नहीं बोलूँगा कि मास्क पहनिए, सब समय मुंह और नाक को मास्क से कवर करिए। मैं मैक्सिमम लोग देखता हूँ कि सिर्फ ठोड़ी पे मास्क पहनते हैं, चिन को कवर करते हैं, मुंह और नाक खुला रहता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपका सिर्फ मुंह भी बंद है और नाक खुला है तो भी आपका कोई वो मास्क पहनने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रॉपरली मास्क पहनिए और अच्छा फिटिंग वाला मास्क पहनिए ताकि आपको प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद में रेगुलरली साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोइए, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है इसके ऊपर एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको अगर आप साबुन से 20 मिनट तक धोते हैं तो वो प्रोटीन की लेयर डिसॉल्व हो जाती है और वो वायरस वहीं मर जाता है। इसलिए 20 सेकंड तक इंटरमिटेंटली साबुन से हाथ धोइए। जहाँ तक पॉसिबल हो बाहर मत निकलिए। भीड़ भाड़ वाली जगह को अवॉइड कीजिए। अगर कभी खांसना है, छींकना है तो अपने मुंह और नाक को कवर कीजिए। ये सारे प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए ताकि आपको इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ही मिनिमम हो जाएगा। सर, आजकल स्ट्रेस भी बहुत है कोविड को लेके, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। आधे लोग तो उसी में परेशानी में बीमार पड़ जाते हैं कि वो शायद मुझे कोरोना ना हो गया हो, ये ना हो गया हो। तो इसके लिए सर कुछ टिप्स आप देना चाहें? तो जैसे कि मैंने बोला अभी, जब बोला कि वो सारे जो प्रिकॉशंस मैंने बोले वो सारे प्रिकॉशंस रखिए, अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए, रेगुलर इंडोर एक्सरसाइजेस कीजिए, योगा मेडिटेशन कीजिए, सोशल मीडिया वर्चुअल लोगों से मिलिए। सोशल मीडिया जो निगेटिव सोशल मीडिया है उसको पॉसिबली अवॉइड कीजिए, अपने निगेटिव थॉट्स को अवॉइड कीजिए और योगा मेडिटेशन कीजिए ताकि आपका मनोबल ऊंचा रहे, ताकि इन पे जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी ये सब चीज़ आप पे हावी मत होने दीजिए। Thank you so much, sir. That was a very wonderful session. I hope it answered a lot many questions you have. अगर आपके दिल में और भी सवाल हैं, you can always jot it down in our section here, and we'll definitely come back to you with the answers. Thank you so much. Thank you so much. Stay safe.